ہماری اتنی خطا پر بھی نبھا رہے امریکہ میں تو 1400 سال سے نہیں ہوں کہ امریکہ کا وجود 1400 سال پرانا نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو کہ 3 بر اعظم اجالے میں تھے جب اسلام مکے اور مدینے کی گلیوں میں پھل اور پھول رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پہلی ہی صدی میں اسلام 3 بر اعظموں تک پہنچ گیا. ایشیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا, افریقہ میں پہنچ گیا اور یورپ میں پہنچ گیا. آسٹریلیا بھی بات کا ہے اور امریکہ بھی بات کا ہے, مگر جب وجود میں آیا تو وہاں بھی لا الہ الا اللہ کے نغمے سنائے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں بھی محمد الرسول اللہ کے جلوے بکھرے. یہ کیا روک لیں گے؟ آپ کو ایک لیٹسٹ خبر دے دوں, شاید آپ کے ذہن سے چپکے. وہ جنگ جو عراق میں ہوئی, امریکہ کے اشارے پر اقوام متحدہ نے یہ اجازت دے دی کہ عراق کو تباہ کر دیا جائے, اور تباہ ہوا بھی. صدام مطلوب بھی کیے گئے, مگر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. آن ریکارڈ بات ہے یہ کہ اس جنگ کے دوران ہی 15,000 عیسائی فوجیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی حقانیت کے جلوے ہیں, بے شک. مگر زیادہ چوڑے مت ہو نا. تمہیں دیکھ کے کلمہ کوئی نہیں پڑے گا, تمہیں دیکھ کے تو بھاگے گا, جی ہے نا. انہیں کچھ ایسے دستاویز مل گئے ہوتے کہ جنہیں مطالعہ کر کے انہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ چل جائے, جی بے شک. ہے نا. تمہیں تو دیکھ کے بھاگ رہے ہو. ہاں, انہیں قریب لانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے یقینی طور پر فالوور بنو, جی بے شک بے شک. ہے نا. تمہیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ. تلوار سے کبھی کلمہ نہیں پڑھا گیا, توپ اور گولوں سے کبھی اسلام نہیں پھیلا. ایک بات ذہن نشی کریے حضرت جلوہ گر ہیں, یہ بات کہنے میں تھوڑی جرأت کر رہا ہوں, اصلاح ہو جائے گی اس لیے کہ ذمہ دار لوگ بیٹھے, آپ سب پڑھے لکھے ماحول کے لوگ ہیں. اسلام جو اللہ کا دین ہے, جس کے بارے میں قرآن میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک بے شک. ہے نا. یہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ڈمپ ہو گیا تھا, اپنی جگہ رک گیا تھا. یعنی حضرت امام حسن کی خلافت کے بعد جب ملوکیت چلی, بادشاہت آئی, تو اسلام ڈمپ ہو گیا. ہاں, مسلمانوں نے بہت ترقی کی, مسلمان تو بہت ترقی کر گئے. اسی بھارت ورش پر ترکان تیموری نے حکومت کی, ایران پر ترکان صفوی نے حکومت کی, مڈل ایسٹ پر ترکان سلجوقی حکومت کرتے تھے, 3 بر اعظموں پر ترکان عثمانی حکومت کرتے تھے. مگر مسلمانوں کی ترقی کا مطلب اسلام کی ترقی نہیں ہے. ایک ترکان تیموری میں سے آپ بتائیے اللہ ماشاء اللہ, اورنگزیب علیہ الرحمہ کا ذکر میں ان پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگاتا, مگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی نظر میں ہے جس نے اپنے بھائی کو مار کے یا کسی قریبی کو مار کے حکومت نہ ہتھیائی ہو؟ بتاؤ. ترکان عثمانی میں بھی نہیں ہے, ترکان سلجوقی میں بھی نہیں ہے, ترکان صفوی میں بھی نہیں ہے, اور یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام تو بلا وجہ چوٹی مارنے تک کی اجازت نہیں دیتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام بلا وجہ چہ جائے کہ کسی انسان کو مار دیا جائے, اور انسان میں بھی بھائی کو مار دیا جائے حکومت کے لالچ میں, یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. 1 انچ زمین
نہیں دکھا سکتے آپ کہ دعویٰ کر سکیں کہ اسے اسلام کہتے ہیں. جس دن یہ دعویٰ آپ کا صحیح ثابت ہو گیا تو اس وقت تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہارا کردار دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رہا یہ وسیم رابضی وغیرہ, یہ سب تو مغولے ہیں, اٹھتے رہتے ہیں مگر ایک دن دریا میں ڈوب جاتے ہیں. کفر کی عادت ہے اچھلنا, مگر تھوڑے دن ہی اچھلتا ہے. ہم نے فرعون کو بھی اچھلتے ہوئے دیکھا ہے, مگر دریا میں ڈوبتے ہوئے بھی تو دیکھا ہے. شداد بھی اچھلا تھا مگر 400 سال مچھر نے گھما گھما کے مارا, اور وہ بھی لنگڑے مچھر نے مارا. شداد بھی اچھلا تھا, قارون بھی اچھلا تھا, میرے بھائی نمرود بھی اچھلا تھا, مگر انجام آپ کو معلوم ہے. ابو لہب بھی اچھلا تھا, میرے بھائی انجام آپ کو معلوم ہے. یہاں کا کفر بھی اچھل رہا ہے, انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس لیے کہ کفر زیادہ دیر تک نہیں اچھلتا ہے, آج نہیں تو کل نتیجہ انشاءاللہ آپ کے حق میں ہی ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ. مگر آپ کو منہ چھپا کے نہیں بیٹھنا ہے, نا. دنیا میں چیلنج تو آتے رہے ہے نا, مگر اللہ حوالے چیلنج قبول کرتے رہے. بولو, کربلا سے بڑا کوئی چیلنج آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا تیر دکھا کے بھاگے؟ بولو, نہیں بھاگے تھے نا. وہ الگ بات ہے کہ تیر سینے پہ کھایا تھا, یہ الگ بات ہے کہ دودھ پیتا بچہ دے دیا تھا, مگر پروردگار نے انہیں کٹنے کے بعد بھی نہیں مٹنے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھئی چیلنج تو قبول کرنا پڑے گا. NRC کا چیلنج آنے والا ہے, CA کا بھی آئے گا, ہے نا. اور یہ وسیم کو تو چھوڑو, اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے چیلنج آئیں گے, اور ان چیلنجوں کو یہ کہہ کے گزرنا ہے تیری اوقات کا جھوکے ہوا کے یہاں گزرے ہیں طوفان سر جھکا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور یہ کام بھی میں اپنے, یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے, ذہن حاضر ہو تو جواب دینا, نہیں دے پاؤ گے تو ہم ہی جواب دے دیں گے, گھبرانا مت. کیونکہ اب آپ کے پاس جواب تو کسی بات کا نہیں ہے. جو سوال کروں گا کون سر چلا جائے گا, گھبراؤ مت. مگر پھر بھی سوال کر رہے ہیں, مگر آپ پوچھو گے کہ جواب ہی دے رہے ہو خود, تو پھر سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ سوال جواب سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. سوال کر رہا ہوں آپ سے, کر دو بیٹا. کوئی ایسا نبی 2,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل پروردگار عالم نے دنیا میں مقبول فرمائے, کوئی ایسا نبی آپ کی نظر میں جس نے اکھاڑے کھلوائے ہوں اور بہترین دعو سکھائے ہوں اور پھر اپنے دین کی تبلیغ کریں؟ کوئی ایسا نبی ہے؟ وہاں سے پوچھ لینا. میں نے تو خوب غور کر کے دیکھ لیا, کچھ چینی کر کے اپنے بڑوں سے پوچھ کے, مجھے کسی نے نہیں بتایا اور بتا ہے نا. اس لیے کہ نبی کا بیس نہیں ہے, یہ نبی کا یہ کام نہیں ہے. نبی اس لیے دنیا میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دے. بے شک رہبری کے لیے آتا ہے, نبی امامت کے لیے آتا ہے, نبی کشتی لڑنے کے لیے نہیں آتا. میں اور کسی نبی کا تذکرہ کیا کروں؟ اب موقع ہے مصطفیٰ جان رحمتی کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ان کا ذکر دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے, سکون پہنچاتا ہے. میرے بھائی, انہی کا تذکرہ کرو جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو رچا, انبیاء اور رسول کو بھیجا, اور ان کا ذکر مکمل تو کون کرے, مگر اتنا کہہ کے تو دل بہلا لیا جاتا ہے کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے کہتے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر سے جنگل کی طرف سرکار تشریف لے گئے, آپ کے ایک ساتھ ہے حضرت زید. جنگل میں پہنچے تھے کہ سامنے
आमना सामना हो गया रुकाना पहलवान से, अरब केसरी से, अरब के सबसे बड़े पहलवान। उसने नूरानी चेहरा देखा और देख के खड़ा हुआ, बोले क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है? बोले जी। बोले यार तुमने पूरे अरब को करकशे में डाल रखा है। बोले क्या हो गया? बोले नबूवत का दावा कर रहे हो? बोले ये अजीब बात कह रहा तू, मैं नबूवत का दावा ही क्या कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे सिर्फ नबी ही नहीं बनाया है बल्कि नबियों का सरदार बनाया है, रसूल ही नहीं बल्कि रसूलों का भी सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले इतना बड़ा दावा तो हमसे कुश्ती लगोगे? सरकार ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सरकार ने? जबकि नबी का वेश देखिए, सरकार ने फरमाया आजा। हज़रत ज़ैद कहते हैं कि जब सरकार ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया ना, तो मेरा जहन गर्दिश में आया, जहन में ये बात आने लगी, पैसे देने में अगर डिस्टर्ब हो रहे हो आप या मुझे कर रहे हो तो पैसे देने में ज़्यादा चक्कर पैसे वैसे बता लो, जो नसीब का वो मिल जाएगा, चुपके से आओ तो रह जाओ, वैसे मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। अपना हाल तो ये है कि फकीरी में सुकूने दिल बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीरी में सुकूने दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शराफत फिर रही है सर झुकाए तो चर्चे हैं कि ये बुज़दिल बहुत है। सुभान हालांकि कफस की तीलियों को तोड़ना हमसे भी आता है। काफिया बदल रहा हूँ और इसी जमीन का एक शेर और कह रहा हूँ, तुम्हारे आंसुओं से पुरना होगी मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे आंसुओं से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे अच्छे किरदार से काम चलेगा। ये घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, रोने लगो या बैठ के नहीं, रस्म शब्बीरी अदा करने का बेशक और इंशाअल्लाह करेंगे भी। इंशाअल्लाह। हज़रत ज़ैद कहते हैं मेरा जहन गर्दिश में आया कि और जो रुकाना पहलवान है, अरब का अरब केसरी, इससे कोई हाथ ही नहीं मिलाता है, और ये नर्मो नाजुक दस्ताने मुबारक, कभी दस्तमोसी का मौका मिले तो ऐसा लगे जैसे गुलाब की पत्तियां हाथ में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा लगे कि मुझको अंबर की खुशबू इनकी खुशबू के सामने हेच हो। मगर ये जहन खा के घूम रहा था, मगर अंदर के दिल से आवाज आ रही थी कि मुस्तफा ने जब चैलेंज कबूल कर लिया है तो गेंद तो अपने ही पाले में गिरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान तो हम ही जीतेंगे। मैं सोच ही रहा था कि मुस्तफा का हाथ हो गया और फलक झपकने से पहले रुकाना पहलवान चारों खाने चित पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों खाने चित कपड़े झाड़ के उठ रहा है और कह रहा है मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा फिर दाव मारा सरकार ने। अब कौन सा दाव मारा मैं क्या मत, अब धोबी पाट मार दिया होगा, लंगड़ी मार दी होगी, कौन सा दाव मारा? फिर चित पड़ा था, फिर बोला इस बार भी धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा जब चित मारा तो जहन का चैनल बदला, चैनल बदला तो बोली भी बदली जी। कोई अंगभक्त बोल रहा है, अब चैनल बदला तो कोई धज्जियां उड़ाने वाला बोल रहा है। वैसे टीवी नहीं देखा मत कर, अखबार भी पढ़ने छोड़ दो, खबरें नहीं है, विचार है जी, है ना, छोड़ दो, चक्कर मत पड़ो, तुम तो कुरान का हमला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की महफिल में बैठ के अहदीस मुस्तफा सुन लिया करो। जी बेशक। देखो जहन हाजिर है, जरा सब लोग मिलकर सुभान अल्लाह बोल दो। तकरीर करना नहीं आती है, दिल के फकोले फोड़ना आते हैं सिर्फ। तकरीर वकरीर तो भूल गया और एनर्जी यहाँ से मिल रही है ना, कुव्वत यहाँ से मिल रही है। एक जुमला नोट करो, मरना तो सबको आता है। जी जी। छत पे से गिर जाओ, छलांग लगा दो जमुना में, गंगा में, है ना,
303 की गोली मार लो दिमाग पे, सब जानते हैं कैसे मरना है, मगर जीना हर एक को नहीं आता। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ जीने का सलीका सिखाने के लिए बुलाया गया है, ये मदरसे जीने का सलीका सिखाने के लिए खोले गए हैं, क्योंकि जीने का सलीका तन्हा मजहब इस्लाम सिखाता है, दुनिया की कोई पोथी नहीं सिखाती है। जीना सीखना है तो कुरान की तिलावत करना सीख लो, जीना सीखना है तो उलमा की महफिल में आके बैठ जाया करो, जीना सीखना है तो अहादीस मुस्तफा की तिलावत करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब चैनल बदला, बोली बदली, बोला मोहम्मद अब समझा, मैं बिटकुट के समझा, मगर समझा तो 3 पटकी खा के समझा, मगर तुम तो करोड़ों पटकी खा के भी नहीं समझ रहे हो। हैं? कितने कुटे हो, कितने पिटे हो, और अब तैयारी भी है। उसके बाद भी अगर तशरीफ पे पता चल रहा तो कह रहा प्रोसिक्यूट है ना। कब समझोगे, कब होश में आओगे? बुजुर्गो, तुम तो गर्दन हिला रहे हो, मगर नौजवानों पे तो करनी गुजर रही है। इन्हें तो हीरो बनना है। अरे इस्लाम हीरो बनने से कब रोकता है? इस्लाम ने हीरो बनने से नहीं रोका है, मगर जानवर बनने से रोका है। जी जी हीरो बनो, कौन रोकता है तुम्हें हीरो बनने से? इस्लाम के हीरो बनो। बताओ करबला वालों से बड़ा हीरो कौन है? हिंदुस्तान में ख्वाजा अजमेरी से बड़ा हीरो कौन है? इमाम अहले सुन्नत से बड़ा हीरो कौन है? ये इस्लाम एक ऐसे हीरो हैं कि करोड़ों साल के बाद भी इन्हें भूला नहीं जाता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम हीरो बनाएगा तो, है ना? आओ मगर, आओ, दावत दे रहा हूँ। वक्त पे जो नहीं माना तो फिर कभी अफसोस होता है। फिर कहता है बैठ के क्या पछताता है जब चिड़िया, है ना? चिड़िया बिल्कुल तैयार बैठी हैं, रखवाली कर लो। और इस्लाम का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुरान का कभी बिगड़ा नहीं जी है। तुम्हारी कुटाई हो जाएगी है? और तुम संभल गए तो ताजवर तुम्हारे कदमों में अपने ताज रखते हुए नजर आए। बेशक बेशक, है ना? वक्त है अभी लौट आओ। इरादा है लौटने का? नौजवानों तुमसे ही कह रहा हूँ, ये बुढ़े तो लौट ही आए, अब इनमें तो बसंत के दिन खत्म हो गए, रखा क्या है? ये मस्जिद के अलावा जाएंगे का, है ना? मगर नौजवानों तुमसे गुजारिश है, और ये भी तारीख के झरोके से कह रहा हूँ बात में, तारीख के झरोके से। अल्लाह के एक नबी गुजरे, नाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। क्या नाम था उनका? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, बनी इस्राइल के नबी। उनके नाम से सूरत भी है कुरान में 11वें पारे। अपनी कौम को सदियों समझाते रहे, बड़ी चीज को मान नहीं रही, मानेगी आज नहीं कल से मुराद मेरा वो है जब हजरत इमाम महदी होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे तो कुचल कुचल के मारेंगे। तो अंजाम को तो पहुंचेंगे। समझाया बहुत दिन नहीं माने, मैं आपको बारहा समझाऊं और आप ना माने तो जिसको मेरी कौम हो तो, मेरे अपने हो तो, तुम्हें तकलीफ होती है तो दिल से आहा चलता है। कभी तन्हाई में मुझसे पूछो कितनी तकलीफ है ना? वो भी बड़ी बेचैनी में आ गया, थोड़े मलूल हुए। मलूल लफ्ज़ बेचैनी गलत है नबी के लिए, मेरे अपने निकाल माफी। मलूल थे, रंजीदा बैठे थोड़ी देर जंगल में। परवरदिगार आलम ने अपने नबी को रंजीदा देखा, साहिर सिदरा हजरत जिब्रील अभी को भेजा, जिब्रील जाओ
میرے نبی کو یہ پیغام سناؤ تمہیں ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے اپنا کام کر دیا, تم نے سیدھا کیا. مانتے ہیں تو مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ قوم لوط کو اڑایا, قوم سمود کو اڑایا, قوم نوح کو اڑایا, نہ جانے کتنی قومیں منٹوں سیکنڈوں میں اڑا دی, انہیں بھی اڑا دیں گے. حضرت جبریل واپس گئے, حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور اپنی قوم کو پھر خطاب کیا, مان جاؤ, دیکھو سمجھ جاؤ, دائرات سے آ جاؤ, کلمہ پڑھ لو اور اپنی عبادت کرو, پھر توبہ کرو. اب کے ڈال دیا, تمسخر کیا. حضرت یونس علیہ السلام واپس چلے گئے اور جیسے ہی انہوں نے بستی چھوڑی, خدا کی طرف سے عذاب کے آثار نمودار. بولتے رہو, بولو یار آگے, سبحان اللہ بولو سب, سبحان اللہ. یار بلوانے کے لیے پولیس بلوانی پڑ رہی ہے, تم تو بولو سبحان اللہ. میرے بھائی آثار نمودار ہوئے. اب وہ تھوڑا سا ہوشیاری سے کام, بچوں کو لے کے نکلے, عورتوں کو لے کے نکلے, جنگل میں گئے, سکنے میں گئے. بولے پروردگار ٹوٹ گئے تھے, دھوکہ کھا گئے تھے, معاف کیا. اب وہی کریں گے جو تیرا نبی کہا تھا. بہت گر گڑائے, اللہ نے رحم فرما دیا. سبحان اللہ. عذاب کے آثار جو تھے وہ غائب ہو گئے, رحمت کے بادل چھا گئے. میرے بھائی اپنے مصطفیٰ کا کسی سے کوئی مقابلہ پہلے سے ہے نا, کوئی مقابلہ نہیں نا. جب یہ پہلے سے طے ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ بھی تو پہلے سے طے ہے کہ امت محمدی کا بھی اس کائنات میں کسی امت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب وہ واپس آئے تو خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. تم جس دن واپس آ گئے, قسم پروردگار کی تمہارے اوپر بھی رحمت کی موسلادھار بارش ہو جائے گی اور دنیا کی طاغوتی طاقتیں تمہارے قدموں پہ نثار ہوتی نظر. بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. تو ابھی وقت ہے, آ جاؤ جیسے کمی پٹے ہو ابھی. جی ارادہ ہے, آنا کہاں ہے؟ مسجد میں آنا ہے. آنا کہاں ہے؟ قرآن کی تلاوت میں آنا ہے, علماء کی محفل میں آنا ہے. اللہ توفیق دے دے تو ماں کے طلبوں میں آنا ہے. بے شک سبحان اللہ. ارادہ بن گیا. یہ مدرسے بھی زندہ رہنا ہے. وہ تو انہیں آتنکواد کاٹا کہہ رہے ہیں, مگر وہ کہتے رہے ان کے کہنے سے ہوتا کیا. میں تو اتنا کہتا ہوں اپنے اجلاس میں کہ یہ مدرسے ہماری جان ہے, جی ہماری شان ہے, اصل میں ہماری زندگی. بے شک بے شک. ان کے بغیر ہم مکمل بولو نہیں ہو سکتے. تو جب یہ ہماری جان ہے تو میرے اسلامی بھائیوں, ہم یہ چیلنج کرتے ہیں اس بھارت ورش میں, اس لیے کہ یہ ہمیں جان سے پیارا ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں جب کربلا میں یزید ہمارے مدرسے نہیں مٹا سکا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی کوئی طاقت ہمارے مدرسے ختم نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا عشق. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. ہم نے اس کا چینل بدلا تھا, بولا محمد جی جی. بولے کیا سمجھا؟ بولے یہ سمجھا کہ یہ خالی تیرے ہاتھوں کے جلوے نہیں ہیں, جی یہ تیری خالی جسم کی قوت کا کمال نہیں ہے, در پردہ یہ تیری نبوت کے جلوے ہیں, تیری سچائی کے جلوے ہیں, تیری حقانیت کے جلوے ہیں. اب لمبی تقریر نہیں کرنا ہے, صرف اتنا کہنا ہے کہ کلمہ پڑھا لے, اپنا غلام بنا لے, اب پوری زندگی تیری غلامی میں گزارنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاتے رہتے میرے بھائی, کیا بتاؤں گا. ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں ایک لیڈی کا, یورپین لیڈی, 40 سال سے اوپر کی.
लंदन के पार्क में अकेली बैठी है और टुक टुक दीनम कमना कशीदम की हैसियत में थोड़े मतलब है ना, नंगे घूम रहे हैं, वो एक तरफ बैठी है। कोई पत्रकार पहुंच गया, मैडम अकेली कैसे बैठी हो? बोले पसंद की नमाज़ें, बोले फिर भी तो, बोले आपको पूछता ही है, बोले कुछ और कहोगी? बोले बस अब और कुछ नहीं कहना। जब पत्रकार एंकर चल दिया, नामानिगार, तो बोली एक बात सुन जा, बोले अकेली बैठी हूँ, ये तो पूछ लिया, काश में इस्लाम की शहजादी होती। बोलो, काश मैं इस्लामी घर में पैदा हुई होती तो अकेलापन नहीं होता, अब तक माँ बन गई होती, और माँ बन गई होती तो जन्नत की बहारें मेरे कदमों पे निसार सुभान होती। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशनी तथा इस्लाम के पास जी देश है ना। तुम अफ्रीका जा रहे हो, हैं? बोले वहां मिलेगी रोशनी। अरे भाई मगरिब में तो सूरज जाके अंधेरा हो जाता है, जी देश वहां रोशनी का मिल जाएगी, हैं? मशरिकी तहजीब में रोशनी है, वहां तो जो दिन निकालता है वो भी अंधा हो जाता है। जिसके जरिए दिन निकलता है वो भी अंधा हो जाता है। रोशनी तो आपके पास है, इसे लेके तो निकलो, मजा आ जाए। नौजवान, तुम्हारी तबीयत चेक करूँ इस बात में। मगरिब में सेरेमनी है, वहाँ की बात तो कोशिश तो बहुत की, मगर प्रिंट मीडिया से भी बात छुप जाती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी छिप जाती, मगर सोशल मीडिया ऐसा इसके सर पे नाच रहा है तो उससे बात हो गया नहीं रही। नहीं रही। सोशल मीडिया के जरिए एक बात वायरल हो गई कि मगरबी जर्मनी की 30% हसीनाओं ने, वहाँ की खालाओं ने मुस्लिम दाढ़ी वाले लड़कों से शादी कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मशवरा दे रहा हूँ कि यहाँ जिसका काम ना निकलना हो, काला पत्ता हो, टेढ़ी टेढ़ी ना, दाढ़ी रखा दे, मगरबी जर्मनी चला जाए, लॉकडाउन के हालात जब सही हो जाए तो उसका काम आसानी से हो जाएगा। वो काला पूरा वो चेहरे पे चूड़ा निकालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 30% का रेशियो बहुत होता है, इसका मतलब आने वाले 20 साल में पूरा मगरबी जर्मनी बगैर किसी तलवार के मुसलमान हो जाएगा। अब वहाँ की ईसाइयत को तशवीश हुई, अच्छा कुछ कश्मीर के लोग भी होते हैं, है ना, यहाँ के खराब ऊपर खबर नहीं होते हैं, उनके साथ उन्होंने कत्लेआम नहीं किया, उन्होंने लड़कियों को इकट्ठा किया और उनका सेमिनार करके उन्हें समझाया, पढ़ियो। बोले क्या हुआ? बोले तुम जिंदगी तबाह कर रही हो। बोले ऐसी कौम के लड़कों से तुमने अपनी जिंदगी जोड़ ली जो हर जगह पिटते कुटते हैं, हर जगह तबाह बर्बाद हैं। अच्छा बात सच्ची है, यहाँ देखो कठिन है, आदत है ना, 2-4 पटा तो असर भी नहीं करते, बोले है ना, तो हर जगह पिट रहे हैं। उनका जवाब सुनो, चोरे हो जाओगे। उन्होंने जवाब दिया था, हमें क्या पता ये पिटते हैं या कुटते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जब ये शाम को घर वापस आते हैं तो शराब पी के वापस नहीं आते हैं, ये कलमा पढ़ते हुए वापस आते हैं, और जब ये घर में होते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए कि सलीका इनके पास इस्लाम का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आला हजरत का ये शेर क्यों ना सुनो? जी जी, जरा दिल से सुनो, सुभान अल्लाह बोल के सुनो। फिर के गली गली तबाह, सुभान फिर अल्लाह, के सुभान गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों,
अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह। ये तो मुकम्मल निज़ाम हयात है। 4th बार MA करने वालों, PhD की डिग्री करके टीम्स लिखने वालों, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वालों, बैरिस्टर बनने वालों, होश में हो, मैं तुम्हें सलीका बता रहा हूं। जिंदगी जीने के लिए शुजाअत की जरूरत पड़ती है, सखावत की जरूरत पड़ती है, सदाकत की जरूरत पड़ती है। ये लाखों किताबों की खुर्दबीन करने की क्या जरूरत है? खुर्दबुर्द करने की एक पर्सनालिटी को पढ़ लो। अगर शुजाअत पढ़ना है तो हैदर कर्रार को पढ़ लो, मुकम्मल शुजा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पढ़ना है तो हमारे फारूक आजम को पढ़ लो, एक पर्सनालिटी को पढ़ लो, काम चल जाएगा। जी बेशक। और जज्बाए इसार पढ़ना है तो करबला के हुसैन को पढ़ लो। बेशक हैं? सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये बातें आपको कहाँ में लगी? केमिस्ट्री में तो है नहीं है, फिजिक्स के फार्मूले में तो है नहीं है भाई, बॉटनी में तो मिलेंगी नहीं। मैथमेटिक्स का कोई मेथड ऐसा नहीं है जो ये बताएगा। ये बात तो आपको मदरसे में ही मिलेंगी, बोलो सीधे कुरान में मिलेंगी। कुरान अल्लाह की लाजवाब किताब है ना। वो अरब के लोग दावा कर रहे थे हम अहले ज़बान हैं, इसलिए वो अरब भी कहते हैं अपने आप को, हैं? अरब का मतलब ही पढ़ा लिखा है, बाकी को अजम कहते हैं, है ना। यानी अंधे बहरे गूंगे जानवर पूरी दुनिया को वो समझते अजम से बना है, अजमा तो जानवर कहते हैं। मगर जैसे ही कुरान आया तो जिनके दावे थे हम हैं अहले ज़बान, सुन के कुरान ज़बाने दबा के चले। मेरे भाई तो ये बरेली की बोली है, ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, इसी में सब जलवे हैं। जी बेशक बेशक, है ना। केमिस्ट्री भी है यहाँ, फिजिक्स भी कुरान में देख लो, बॉटनी भी कुरान में देख लो। एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज जो चीख चीख के लोग कहते हैं यूनिवर्सिटियों ने बहुत कुछ दिया है, सरपर्दा कुरान नहीं दिया। जी बेशक। पढ़े लिखे लोगों, यहाँ हायर एजुकेटेड लोग होंगे, वेल एजुकेटेड लोग, PhD भी करके आए होंगे, है ना। MSc भी की होगी उन्होंने, BTech और MTech भी होंगे, आर्किटेक्ट भी होंगे। मेरे भाई मुझे बताओ यूनिवर्सिटियाँ कितनी पुरानी हैं? जी बहुत पुरानी, 400 साल पुरानी है ना। जब बहुत पुरानी नहीं है, 400 साल की तारीख है इनकी, तो 400 साल पहले पूरी दुनिया में कोई इंजीनियर नहीं था, है ना। उनके मदरसे तो थे और मदरसों से इंजीनियर की डिग्री नहीं मिलती, आलिम दीन की डिग्री मिलती है, हाफिज की डिग्री मिलती है, कारी की डिग्री मिलती है। जी बेशक, है ना। तो आर्किटेक्ट की डिग्री तो मिलती नहीं है। सुनना मेरी बात, करो ध्यान, मन लगाना, मन खास बात कहने जा रहा हूँ आगे, है ना। तो जब कोई इंजीनियर नहीं था, जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था, है? जब कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, तो उस जमाने में इसी हिंदुस्तान में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था। सुभान अल्लाह। बोलो, ताजमहल बना, दिल्ली की जामा मस्जिद बनी, कुतुब मीनार बनी। पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा, जब कॉलेज थे नहीं, इंजीनियर थे नहीं, तो दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है। कुतुब मीनार, फलकबाज भी कुरान पढ़ने वालों ने बनाई है। ये सब कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नाटका में है मैसूर जिसे कहते थे, कावेरी नदी का पुल, बता किसने डिजाइन किया? डिजाइनर कौन है? टीपू सुल्तान। सुभान अल्लाह। है? अंग्रेजों ने भी अजूबा पुल बनाए, हावड़ा नदी का पुल उन्होंने बनाया, दिल्ली का डबल स्टोरी का पुल भी बनाया, है ना। मगर कावेरी नदी का पुल तो जाके देख लो,
किसी इंजीनियर अंग्रेज ने उस कावेरी नदी के पुल पे जाके कहा था कि इसका जो डिजाइन है और इसका जो डिजाइनर है, मुझे इसे देख के हैरत होती है कि टीपू सुल्तान तो एक दिन भी स्कूल में नहीं गया था, मगर इस पे जो कमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 500 साल तक इस पुल की मियाद बरकरार रहेगी। इसे मिटाया सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने पूछा था कि ये फार्मूला कहाँ से लाए, ये डिजाइन कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा था भाई मैंने तो कुरान पढ़ा है, घर में होता हूँ या जंग के मैदान में, आंधी होती है या तूफान, मैं कुरान के रोज 4 पारे तिलावत करता हूँ, उसी से मैंने ये डिजाइन निकाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम वहां भाग रहे हो जहां न बैठने का सलीका है, न चलने का सलीका है, न उठने का सलीका है, न खाने का सलीका है। मैं डॉक्टर को नजर दिला के आया था, मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा आपकी पैथी मॉडर्न पैथी एलोपैथी बिला वजह पेट फाड़ दे रहे हैं, जरूरत नहीं फाड़ दे रहे है ना। शहरों में 80% डिलीवरी बच्चों की पैदाइश विलादत बड़े ऑपरेशन से, मेजर ऑपरेशन से है ना, हो रही है नहीं। देहातों में तो कुल दरबार है, मगर देहातों में फंस जाते हैं यार, जाके पढ़े लिखे फंस जाते हैं। मैं भी चला गया था उस जाल में, तब मुझे फांसना था रही थी, है ना। मैंने पूछा, मैंने मैडम मुझे आप ये बताइए बच्चा पैदा होना तो बीमारी, तो मैंने कही ऑपरेशन, बोले खान पान बदल गया है। मैंने पूछा दिल्ली का है? मैंने उसका भी तो खान पान वही जो हमारा, हम तो आप रोटी खाते को तो छिपड़े उधर रही है, बोलो तो या तो वो फैटी की हड्डी खा रही है जिसमें मिट्टी भी शामिल हो जाती है, कीटाणु की बीमारी के जा सकते, या तो देखभाल होती है 100 डिग्री पे, है ना, धारदार मसाले पड़ते, फिर भी मेरे भाई, मैंने मैडम मुझे बताओ किसी कुतिया के कभी डिलीवरी ऑपरेशन तो हुई 8 बच्चे देती है कम से कम, बोले ऐसा तो नहीं है। तो मैंने खान पान तो उसका भी वही है, जब उसके कोई ऑपरेशन नहीं होता और बच्चे हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बच्चे पैदा होना बीमारी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसीजर है, कुदरती निजाम है। जब बीमारी नहीं है तो इलाज किस बात का, इलाज तो बीमारी का होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाई तो मैंने मुझे क्या पता, बोले नहीं फिर भी मैं क्या पूछ रही है, मुझे क्या पता, बोले मैं नौकरी कर रही हूँ और विरासत कराने का काम, मेरे बॉस ने मुझसे शर्त लगाई है कि महीने में 10 ऑपरेशन नहीं हुए तो बीमारी सरकार से पैसा काट लिया जाए। तो मैंने हो नहीं होते होंगे, बोले नहीं, होना ही तो नहीं होते हैं, पूरा दर्द होता है, बच्चा बिल्कुल दहाने पर रखा होता है, हम दर्द रोकने का इंजेक्शन लगाते हैं और हाथ से बच्चा अंदर धकेल देते। अब बगैर ऑपरेशन के बच्चा है ना, नौकरी फौरन छोड़ दो तो 1-2 दर्द थोड़ा ही है। आप भटक गए हो इसलिए कि मदरसों से भाग गए हो, आप भटक गए हो इसलिए कि कुरान से भाग गए हो, आप भटक गए हो इसलिए कि उलमा आपको बोने लगने लगे। बुरी नजर से देख रहे हैं तो मौलवी साहब है, बताऊंगा क़यामत में इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे ये मस्त, ये दीवाना, ये आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब कब्जा खड़े होंगे तो नेताओं तक तुम्हारी दादागिरी, इंजीनियरों तब के लिए
डॉक्टरों सब देखेंगे तुम्हें, चीरा फाड़ी कर रहे हो, पुल बना रहे हो, मगर नमाज पढ़ने का सलीका नहीं आया। दादागिरी वहां देखी जाए जी बेशक। वहां गिरियों जरा कदमों में, है ना। भला इसी में कि शान से वहां भी चलो तो उलमा की महफिल में आ जाओ, मदरसों में आ जाओ, है ना। मैं मेरे इस्लामी भाइयों, आपको मैं करीब टाइम देख लूँ, मैंने 1 घंटे के सोचा, इतनी देर आप क्यों चुप हो गए? मैं टाइम देख रहा हूँ तो तुम तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई देखो सुभान अल्लाह बोलिए आप एक बार। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये वो किताब है कि इसमें शको शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी उसूल है वो लाजवाब है। अब उसकी गहराई पर कोई ना जा पाए, पगला तो मैं क्या करूँ? जी बेशक। है वो जाहिल झपट कॉलेज में पढ़ी आया और अपनी अकल के घोड़े दौड़ान लगा पगले, इसकी मंजिल तो वहां से शुरू होती है जहाँ बैठ जाते हैं, है ना। मेरे भाई दिल हमें हुआ हासिल दर्द में फना होकर, सुभान अल्लाह। दिल हमें हुआ हासिल दर्द में फना होकर, और इश्क का हुआ आगाज हम की इंतहा होकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इश्क की बातें हैं और वो कहाँ मिलती है? कुरान में। आओ मैं किस्सा सुनाऊंगा, किस्सा सुनाऊंगा तो हुंकारे भी चाहिए जी, है ना। हुंकारे बंद करोगे तो किस्सा लपेट है और बात खत्म हो जाएगी। किस्सा ये है कि कुरान पर तो तहकीक हो रही है ना, गौर व फिक्र हो रहा है कुरान पे, पहले दिन से हो रहा है, आज तक जारी है। जितने फार्मूले हैं दुनिया में और जितनी तरक्कियां हैं दुनिया में, सब कुरान के जलवे हैं। जी बेशक। आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं, कुरान में कुरान के जलवे होते तो लाउड स्पीकर मदद से जो बनता। कहोगे, सवाल तो कहोगे, है ना। और कंप्यूटर भी, हवाई जहाज का फार्मूला भी, हेलीकॉप्टर का, रेलगाड़ी का इंजन, ये पटरी का डिजाइन कुरान में होता है ना। मगर ये भी तो समझो, कुरान नहीं था तो बोलो लाउड स्पीकर कहाँ? ये बल्ब कहाँ थे? ये CFL, ये कुमकुमे नहीं थे ना, हेलीकॉप्टर भी तो नहीं था, हवाई जहाज भी तो नहीं था, जी बेशक। रेलगाड़ी भी तो नहीं थी। आप थे, है ना, कुछ नहीं था। बैलगाड़ियों पर दौड़ रहे थे, ऊंट पर सवारी कर रहे थे, घोड़ों पर दौड़ रहे थे, बोलो ऐसा ही था। जी। मगर कुरान आया तो ये सब जलवे फर्राटे मारने वाली मोटरसाइकिल, हवा से बात करने वाली कारें, फजाओं में खलाओं में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, रेडार, ये हवाई जहाज सब बन गए थे, कुरान के बाद ही बने हैं। मगर 200 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। कुरान 1400 बरस पहले आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया था ना। फिर 1200 साल क्या हुआ? जरूरत नहीं थी, है ना, घोड़ों से ही काम चल रहा था। मगर कोई सवाल ना कर दे, कोई चैलेंज ना कर दे। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने आज से 1400 बरस पहले ही इन टेक्नोलॉजी वालों को आंखें दिखाई थी, चैलेंज किया था कि देखो तुम आने वाले जमाने में टेक्नोलॉजी के जरिए पनडुब्बियां चलाओगे समुद्रों के अंदर, हम समुद्रों की लहरों पे घोड़े दौड़ा के ये बताते हैं कि जो मुस्तफा के दीवाने कर लेंगे वो टेक्नोलॉजी वाले और साइंस वाले बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मजा आएगा तुम्हें। एक नौजवान मुकर्रिर जिसकी आवाज में खंखरा
नए जलवे देखेंगे आप, अब उछलेंगे आप। ये ऐसा अजीम मुकर्रिर है, ये इस्लामिक वो फाइटर है कि इसके एक एक फाइट में न जाने कितने लोग सलाम होते हैं, है ना। अब बैठ जाओ आप नौजवानों, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। अब बात मत करो, हमें करने दो बात। घबराओ मत, ज्यादा देर करने। अच्छा अच्छा, अरे हजरत आ गए, अब मैं बहुत देर करने में मेरा काम हो गया। अब सीने में दम नहीं है भाई, है ना। अब एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो एक बात बता के बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मजे ही ले रहे हो या कुछ इरादा भी है? भाई मजे ले रहे हो तो बात खत्म कर रहा हूँ। ये जलसे अफसाने नहीं होने चाहिए, है ना। ये जायज तनीमा घर मत बनाओ ना कि मजे लेने आए और चले गए, सुबह को रंग निकले, है ना। मस्जिदें आबाद हो, माँ की बेअदबी नहीं होगी। इरादा करो, उलमा के पास बैठा करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। मेरे भाई कुरान की तिलावत किया करेंगे, नहीं ये फांस लेंगे सब मिलके। इस जाल में से निकलना है तो इस्लाम ही निकालेगा, इस जाल में से निकलना है तो मेरे भाई मदरसा ही निकालेगा। इस पे मत मारो, बल्कि यहाँ हाफिज़ कुरान भी बनाओ और आलिम दीन भी है, और यहीं से रास्ता निकले तो डॉक्टर भी बना लो। कोई भाई डॉक्टरों पे कोई हम जीत जाते हैं इलाज के लिए, है ना। सही है, मगर वो वन टी है, बोले सुबह को खइयो, दोपहर को खइयो, शाम को खइयो, नक्शा बदल दे, तरीका बदल दे। बोले ये दफा फजर की नमाज अदा करके और नाश्ता करने के बाद ये दवा जो इस्तेमाल होगी वो जोहर की नमाज पढ़ के होगी और फिर आगे वाली ईशा की नमाज पढ़ के, यानी नमाज का भी जिक्र हो जाए और दवा खाने का तरीका भी बता दिया जाए। सुभान अल्लाह। तो ये काम तो तना मदरसा ही करेगा। आम के आम हो जाएंगे और गुठलियों के दाम भी हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था, मैंने डॉक्टर से पूछा कि तुम्हारी मॉडर्न पैथी में खड़े होकर खाने से क्या फायदा होता है, तो वो मुझसे बोले यार ना मुझे शुगर हो गई। मैंने कहा मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें शुगर हो गई या कुछ और हो गया, ये पूछ रहा हूँ कि खड़े होकर खाने में आपकी पैथी ने क्या क्या फायदे बताए। बोले आप ही की बात का जवाब है मौलाना। मैंने कहा जैसे? बोले जैसे मिल जाता था ऐसे पूछ लेते थे, खड़े होकर मिल गया तब, बैठ के मिल गया तब, चलते फिरते मिल गया तो उड़ा दिया। अब पिंडियों में दर्द हुआ, रात को पेशाब भी बहुत आई, डॉक्टर थे, सुबह को जांच कर ली तो शुगर लिख ली, फिर बैठने लगा नहीं तो शुगर बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह महफूज रखे। तरीका बता रहा हूँ, खाना खाने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर पेशाब करने जाए करो, चाहे एक ही कमरा क्यों न हो, इंशाअल्लाह। अगर किससे नहीं हुई है तो शुगर होगी इंशाअल्लाह। और हफ्ते में 1 बार या 2 बार मोटे अनाज की रोटी भी इस्तेमाल किया। भाई सादगी में जो मज़ा है वो ज़्यादा करो कर में मज़ा नहीं है। इस्लाम सादगी वाला मज़ा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले अब दिल बैठ रहा था, अब सोचा कि सरकार कैसे खाना चलाओ फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। उलमा से पूछा, कुतुबीनी की, मिल गया तरीका। बोले उस तरीके पे जिस दिन से खाना शुरू किया है, बोले कसम परवरदिगार की मेरी शुगर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? और बीमारियों के अंबार लिए घूम रहा है, इस्लाम ही क्यों ना बना, है ना? तो मेरे भाई भलाई इस्लाम ने सब कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा है। कैसे चलोगे इस्लाम ने बताया, कैसे बैठोगे इस्लाम ने बताया, कैसे पियोगे इस्लाम ने बताया, कैसे खाओगे इस्लाम ने बताया, कैसे सोओगे इस्लाम ने बताया। एक चीज पे इंशाअल्लाह पलोला, अरे नाम बदल रहा है यार, ये सब पलोला कोई नाम हुआ? कौन सी जबान का नाम है? कौन सी लैंग्वेज है ये पलोला? आगे क्या है इसमें?
अच्छा, ये मुजाहिद वाला अच्छा लगा, तुम भी मुजाहिदपुर वाले ही हो जाओ मेरे भाई। तो फलोला वालों, गुजारिश है आपसे, बहुत धन्यवाद। अब इस्लाम से जिंदगी उतरेगी इंशाअल्लाह। बोलो, नमाज पढ़ के जिंदगी उतरेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना। बुराइयों से दूर रह के, मदरसों के करीब होके, मैंने देखा तारीख में तुम्हारा ये आदमी था, वो ज़्यादातर बड़ी तंगी कौम था। हाँ, और सबका ताल्लुक काई वाई से तो नहीं होगा, तो फुरकान तैमूरी होंगे, हैं कि फुरकान तैमूरी भी हो सकते हो, फुरकान सल्जूकी भी हो सकते हो, फुरकान सब्जी भी हो सकते हो, और फुरकान सल्जूकी भी हो सकते हो। चलो बहरहाल तो रखो, एक ही मामला है तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ हुआ था एक मुस्तफा कमाल पाशा, है ना, बहुत बुरा था। मुस्तफा हटा दो, कमाल पाशा को, मुस्तफा तो अपने आका का भी नामे नामी है, बोलो इससे नामी है, मुस्तफा हटा दो उससे। वो कमाल पाशा मदरसों में चढ़ गया था, कुरान की तिलावत बंद करा दी थी, 50 साल रहा था, लोग कलमा पढ़ना भूल गए थे, है ना, मगर उछल लिया खूब। एक दिन गया, जमीन ने कबूल ही नहीं करता, है ना, 2-3 जगह दफनाया गया, मगर जमीन ने फेंक दिया, बोले इतने बुरे को कबूल नहीं किया जा सकता। बुरा क्यों है? मदरसों से टकरा गया था, मदरसों से टकराने का मतलब मुस्तफा से टकरा गया था, और मुस्तफा से टकराने का मतलब है खुदा के मुकाबले में था। फिर बताओ कौन बचेगा? तो वही इस्तांबुल में ना, अंकारा में दुनिया वालों ने देख लिया ये मदरसे से टकराने का अंजाम है। मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि टकरा रहे हैं, अंजाम बुरा ही होगा, है ना, अंजाम खैर नहीं हो सकता। बस ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान है, असीरे गम मुसलमान, पलट जा अपने मकसद को। मुसलमान है, असीरे गम मुसलमान, पलट जा अपने मरकज को, पलट जा। जमाना है कि आगे बढ़ रहा है, तू 1400 बरस पीछे को हट जा। अस्सलाम वालेकुम।